Hello, children. I hope you all are doing great. Today, we will discuss about something that we see daily in our gardens, on the roads, or somewhere else. Any guesses? Okay, let me give you one more hint. It contains fruits, flowers, and vegetables too. Yes, you guessed it right. We are going to study about plants. So, children, how many of you have seen big trees? Everyone, I guess. How many of you have seen small plants? Everyone? Well, me too. Tell me, what is the basic color of leaves of a plant? Red? No, it's green. The leaves of a plant are basically green. Now tell me, children, can plants have fruits? Yes. So the basic things that we will study in this chapter are about fruits, seeds, flowers, stem, roots, etc. So let's start. Just like hands and legs in our bodies, plants also have different parts. Like hands help us in lifting things and legs help us in walking, the parts of plant also help them in many ways. How? We will learn today. Have you seen a flowering plant? आपने कभी flowering plant देखा है? Okay, flowering plant is that plant which consists of flowers. Flowering plant वो plant होता है जो flowers produce करता है. Flowering plant के दो main parts होते हैं, root and shoot. Root means root is that part of a plant which is under the soil. Root plant का वो part होता है जो soil के नीचे होता है, जो हमें visible नहीं होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं. While shoot is the part of a plant above the soil. वो soil के ऊपर होता है और उसे हम देख सकते हैं. Now, as we know what are roots and shoots, we will learn more about roots. Roots are of two types, fibrous roots and tap roots. Fibrous roots वो roots होती हैं जो stem के end point से grow होती हैं और वो similar size और length की होती हैं. While tap root एक main root होती है जो stem के नीचे से grow होती है और उस main root में बहुत सारी small roots develop होती हैं. Examples of fibrous roots are grass, onion, rice, etc. While the example of tap roots are pea, bean, mustard, etc. Now, as we know the difference between fibrous roots and tap roots, we will learn about the functions of roots. Roots के क्या काम होते हैं और वो प्लांट को किस वे में हेल्प करती है. जैसे हमारे हैंड्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं. अगर हमें कोई चीज़ पिक करनी होती है तो हमारे हैंड्स हमारी हेल्प करते हैं. इन द सेम वे रूट्स ऑल्सो हेल्प प्लांट इन सम वेज. वी विल लर्न अबाउट दैट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू एन एक्टिविटी. द एक्टिविटी इज़ गो टू अ गार्डन. आप अपने घर के गार्डन में जाइए एंड विद द हेल्प ऑफ अ गार्डनर और योर पेरेंट्स, अपने गार्डनर की हेल्प लेके या अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके try to pull out a weed. What is weed? Weed वो unwanted plants होते हैं जो हमारे गार्डन में अपने आप ग्रो हो जाते हैं, like grass. तो आप अपने गार्डन में जाइए and with the help of your parents और gardener try to pull out a weed. आपको क्या फील होगा? आप weed को easily pull नहीं कर पाएंगे. क्यों? बिकॉज जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सॉइल के अंदर टाइटली होल्ड करके रखती हैं. दैट्स वाई इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पुल आउट अ वीड. तो इस एक्टिविटी से हमें एक फंक्शन पता चल गया. द वन फंक्शन ऑफ रूट इज़ दैट इट होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल टाइटली. रूट्स प्लांट को सॉइल के अंदर टाइटली होल्ड करके रखती हैं. The second function of root is that they absorb water and minerals from the soil.
रूट्स का दूसरा फंक्शन ये होता है कि वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करती हैं। थर्ड फंक्शन ऑफ रूट इज़ सम रूट्स स्टोर फूड इन देम। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं, और ऐसी ही कुछ रूट्स को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेट एंड रेडिश। लेट्स सी नाउ कि अभी तक हमने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं। अभी तक हमने देखा है दैट फ्लावरिंग प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट। रूट वो पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर होता है, वाइल शूट इज़ दैट पार्ट जो सॉइल के अबव होता है। रूट दो टाइप्स की होती हैं, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। और हमने पढ़े हैं द थ्री फंक्शंस ऑफ रूट्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्टेम। स्टेम प्लांट का वो पार्ट होता है जिस पे फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड्स ग्रो होते हैं। स्टेम इज़ मेनली ऑफ ग्रीन कलर। स्टेम का कलर क्या होता है? ग्रीन। और स्टेम पे कौन सी चीज़ें ग्रो होती हैं? फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। स्टेम ग्राउंड के अबव ग्रो होती है, स्टेम ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है। कोरिएंडर एंड स्पिनच की जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है। रोज़ प्लांट की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। और कुछ बिग ट्रीज़ होते हैं लाइक नीम, मैंगो एंड banyan ट्री, जिनकी स्टेम थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। उसे हम कहते हैं ट्रंक, और वो किस कलर की होती है? ब्राउन। सो द स्टेम ऑफ कोरिएंडर एंड स्पिनच इज सॉफ्ट, स्टेम ऑफ रोज प्लांट इज हार्ड, and stem of big trees like neem, mango and banyan tree is called trunk, and it is of brown color. Now we will see the functions of stem. अभी हमने पढ़ा था स्टेम प्लांट का वो पार्ट होता है जिस पे लीव्स ग्रो होती हैं, बड्स ग्रो होती हैं और फ्लावर्स ग्रो होते हैं। तो ये है स्टेम का फर्स्ट फंक्शन। द सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टेम इज़ that it holds the plant upright and supports its branches. स्टेम का एक फंक्शन ये है कि वो प्लांट को सीधा होल्ड करता है और उसकी ब्रांचेस को सपोर्ट करता है। द थर्ड पॉइंट ऑफ स्टेम इज़, स्टेम जो होती है वो वाटर कैरी करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। स्टेम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक फूड और वाटर कैरी करती है, मतलब पहुंचाती है। कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो ग्राउंड के अंदर ग्रो होती हैं और उनके अंदर फूड स्टोर होता है। ऐसी ही कुछ स्टेम्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं एज वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल अनियन एंड जिंजर। हैव यू एवर वंडर्ड कि जो प्लांट्स होते हैं लाइक कैक्टस इन द डेजर्ट एरियाज, उनकी स्टेम का क्या फंक्शन होता है? Okay, let me tell you. The function of the stem of cactus plant is that it holds the water for a long period of time. जो प्लांट की स्टेम होती है डेजर्ट एरियाज़ में, उनका फंक्शन ये होता है कि वो वाटर को होल्ड करती हैं बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। वन मोर क्वेश्चन, डू यू नो पोटैटो ग्रोज ऑन प्लांट or it is an underground stem? Exactly, potato is an underground stem. जो पोटैटो होता है वो ग्राउंड के अंदर स्टेम्स में ग्रो होता है। पोटैटो का कोई प्लांट नहीं होता है, इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम। एज वी हैव जस्ट स्टडीड, द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज़ ऑफ ग्रीन कलर। पर प्लांट में एक और चीज़ होती है विच इज़ ऑफ ग्रीन कलर। Can you tell me what? Yes, leaves. Leaves are the part of a plant which are of green color. Now, leaves plant के कौन से part पे grow होती हैं? Stem पे. Leaves grow on stem. Leaves can be of different shapes and sizes.
लीव्स के जो शेप और साइज़ होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कलर ऑफ लीव्स इज़ ओनली ग्रीन. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लीव्स का कलर सिर्फ ग्रीन हो. मोस्टली प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. हैव यू एवर सीन अ As we have just studied, the stem of a plant is of green color. पर प्लांट में एक और चीज़ होती है which is of green color. Can you tell me what? Yes, leaves. Leaves are the part of a plant which are of green color. Now, leaves प्लांट के कौन से पार्ट पे ग्रो होती हैं? स्टेम पे. Leaves grow on stem. Leaves can be of different shapes and sizes. Leaves के जो shape और size होते हैं वो different हो सकते हैं. It is not necessary that the color of leaves is only green. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि leaves का कलर सिर्फ green हो. Mostly plant की जो leaves होती हैं वो green कलर की होती हैं. Have you ever seen a leaf properly? आपने कभी लीफ को ध्यान से देखा है? डू वन थिंग. टेक अ लीफ एंड पुट इट ऑन अ टेबल. टेबल पर रखने पर जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड लीफ प्लेट और लैमिना. लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसे हम लीफ प्लेट कहते हैं या लैमिना कहते हैं. लीफ के बीच में एक मेन थिक लाइन होती है उसे हम मेन वेन कहते हैं. उस मेन वेन से बहुत सारी स्मॉल वेन्स निकलती हैं, उन्हें हम साइड वेन्स कहते हैं. और इन वेन्स का क्या काम होता है? द फंक्शंस ऑफ दीज वेन्स इज़ दैट दे कैरी वाटर टू द लीफ. वो लीफ तक पानी कैरी करती हैं. नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स? जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट में वो प्लांट को हेल्प करती हैं फूड बनाने में. कैसे? विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिससे ग्रीन लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और इसीलिए लीव्स को कहते हैं किचन ऑफ प्लांट. व्हाट इज़ किचन बेसिकली? किचन वो जगह होती है जहाँ पे मम्मा आपके लिए फूड प्रिपेयर करती है. सेम वे लीव्स वो जगह होती है जो फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स के लिए विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड यू नो व्हाट? Animals and human beings, we both are dependent on plants for food requirements. Leaves help करती हैं plant को breathing में. कैसे? Tiny holes present होते हैं leaves में जिन्हें हम कहते हैं stomata. और stomata की help से plants breathe करते हैं. कुछ plant की leaves ऐसी होती हैं जो अपने अंदर food store करती हैं और ह्यूमन बींग्स उसे कंज्यूम करते हैं एज वेजिटेबल्स. दीज वर द सम फंक्शंस ऑफ लीव्स. अच्छा, वाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर? लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कैरी अ पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल की हेल्प से लीव्स का कलर ग्रीन होता है. आप लोगों ने रोज़ देखा है और लोटस? मैंने भी देखा है. रोज़ और लोटस फ्लावर्स होते हैं. रोज़ का कलर क्या होता है? रेड. वेरी गुड. लोटस का कलर क्या होता है? पिंक. वेरी गुड. तो फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं. रोज़ थोड़ा स्मॉल होता है और लोटस बिग होता है. और रोज़ की स्मेल कैसी होती है? स्वीट. वेरी गुड. तो फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर्स. फ्लावर्स की स्मेल कैसी होती है? स्वीट. और फ्लावर्स प्लांट के सबसे कलरफुल पार्ट्स होते हैं. और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ग्रो होने पर
फ्रूट्स बन जाते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स एक ऐसी प्रोसेस में हेल्प करते हैं जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीन्स किसी चीज़ को बनाना और रिप्रोडक्शन का मीन्स किसी चीज़ को दोबारा बनाना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा बनाना। सेम वे फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावर्स एक ऐसी प्रोसेस में हेल्प करते हैं जिसमें एक फ्लावर्स से दूसरे फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ग्रो होने पर फ्रूट्स बन जाते हैं। फ्रूट्स। कितने बच्चों को फ्रूट्स पसंद हैं? वेल, आई लाइक फ्रूट्स टू। फ्रूट्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, दैट इज़ ट्रू। और फ्रूट्स कैसे होते हैं? टेस्टी। क्या सारे फ्रूट्स का टेस्ट सेम होता है? नो, राइट। क्या सारे फ्रूट्स की शेप और साइज सेम होती है? नो। तो फ्रूट्स डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं और फ्रूट्स का टेस्ट डिफरेंट होता है। जब आप फ्रूट्स कंज्यूम करते हो तो फ्रूट्स के अंदर एक हार्ड पार्ट होता है जिसको आप कंज्यूम नहीं करते, उसे हम कहते हैं सीड्स। कुछ फ्रूट्स में सिंगल सीड्स होती हैं लाइक मैंगो, और कुछ फ्रूट्स में बहुत सारी सीड्स होती हैं लाइक वाटरमेलन। तो फ्रूट्स डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं, फ्रूट्स का टेस्ट डिफरेंट होता है। कुछ फ्रूट्स में सिंगल सीड्स होती हैं और कुछ फ्रूट्स में बहुत सारी सीड्स होती हैं। सिंगल सीड्स होती हैं मैंगो और पीच में, और बहुत सारी सीड्स होती हैं वाटरमेलन और पपाया में। नाउ व्हाट आर सीड्स? सीड्स फ्रूट का वो पार्ट होता है जो फ्रूट के अंदर होता है और जिसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं। सीड्स के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। जब हम लोग सीड्स को सॉइल में सो करते हैं तब उन सीड्स से एक बेबी प्लांट ग्रो होता है जो बड़ा होके और बड़ा ट्री बन जाता है। देयर आर सम सीड्स जिनको हम कंज्यूम करते हैं लाइक व्हीट, कॉर्न, राइस एट्सेट्रा। पर जो सीड्स होती हैं जो मैंगो के अंदर होती हैं उन्हें हम कंज्यूम नहीं करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट। रूट सॉइल के बिलो ग्रो होती है और शूट सॉइल के अबव ग्रो होती है। रूट दो टाइप्स की होती हैं, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। फाइब्रस रूट्स स्टेम के नीचे से ग्रो होती है जो सिमिलर साइज और लेंथ की होती है, वाइल टैप रूट इज़ वन मेन रूट दैट ग्रोज बिलो द स्टेम, और उस वन मेन रूट से बहुत सारी स्मॉल स्मॉल रूट्स ग्रो होती हैं। देन फंक्शंस ऑफ रूट। रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल एंड रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं लाइक कैरेट एंड रेडिश। देन वी हैव लर्नड अबाउट स्टेम। स्टेम प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और बर्ड्स ग्रो होते हैं। यही स्टेम का फर्स्ट फंक्शन भी है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेम प्लांट को स्ट्रेट रहने में हेल्प करती है और स्टेम फूड और वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक कैरी करती है। स्टेम्स ग्राउंड के अंदर ग्रो होती हैं और अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं लाइक अनियन एंड जिंजर। देन कम्स लीफ। लीव्स आर ऑफ ग्रीन कलर और वो स्टेम पे ग्रो होती हैं। लीव्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स प्लांट को हेल्प करती हैं ब्रीदिंग में, और कुछ प्लांट की लीव्स अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं लाइक कैबेज। नाउ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल. They are of different shapes and sizes. Flowers have sweet smell. Flowers help in reproduction. Flowers एक ऐसी प्रोसेस में हेल्प करते हैं जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन,
जिससे और फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ग्रो होते हैं तो फ्रूट्स बन जाते हैं. देन कम्स फ्रूट्स. फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी. Fruits can be big or small, and inside the fruits there are seeds. कुछ फ्रूट्स की सीड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंज्यूम नहीं करते हैं, लाइक मैंगो. और कुछ सीड्स होती हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, लाइक व्हीट, कॉर्न, राइस, एट्सेट्रा. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर.